کہ ہم ایک پرسکون اچھی زندگی کی تلاش میں ہر وقت پھرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ہر صبح اٹھ کے ہماری ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اور اپنے زندگی کے حالات کو اور اپنے گھر کی حالات کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں، میں کیا کروں کہ سب کچھ مجھے ملے، کیا کروں کہ میری فکریں، میری پریشانیاں ختم ہو جائے، کیا کروں کہ میرے جو مشکلات کا سفر ہے وہ آسانیوں کا سفر بن جائے، میں ایسا کیا کروں کہ میرے لینے والے ہاتھ خدا دینے والے ہاتھ بنا دے۔ اس چیز کے لیے ہم ہر روز صبح اٹھ کے سوچتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ایفرٹس بھی کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یسوع المسیح نے اسی کے بارے میں زمین پر جینے کا حق ادا کرنے کے بارے میں کہا کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایمان سے کہہ سکتا ہوں، خدا کا پاک روح جو ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے، آج اگر آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر جائیں گے تو خدا واقعی ہی آپ کے حالات کو بدلے گا، لیکن حالات تب بدلیں گے جب آپ کے تعلقات بحال ہوں گے۔ آمین۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 12 باب اور اس کی 22 آیت سے لے کر 34 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے یسوع المسیح کے الفاظ ہیں، اور میں چاہتا ہوں جن کے پاس خدا کا زندہ پاک کلام موجود ہے وہ لازمی پڑھیں۔ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں بلکہ مسیح یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے خود کے الفاظ ہیں، جو اس نے ایک انسان کے لیے یا ایک زمین پر رہنے والے شخص کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ زمین پر کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بھیڑ کا واقعہ ہے جہاں پر یسوع اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے، تو وہاں پر یوں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر اور بدن پوشاک سے۔ کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتے ہیں نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک بناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور شکی نہ بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بڑی خوبصورت باتیں اس نے کی۔ آپ سب نے امید ہے دل سے، ذہن سے، کھلے ذہن کے ساتھ سنی بات۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو جب اس زمین پر بھیجا تو ایک بہت بڑی بھیڑ کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں کچھ نصیحتیں کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے کہ فکر نہ کرو، اپنی جان کی فکر نہ کرو۔ آج یہ لفظ جو فکر ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ آج بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے ہم شکست حالی میں جاتے جا رہے ہیں۔ انہی فکروں کی وجہ سے کچھ ہم کر تو نہیں سکتے، ان فکروں کی وجہ سے ہم
कुछ भी नहीं कर सकते। इसका असर सबसे ज़्यादा हमारी सेहत पर होता है, और बदले में हमें क्या मिलता है जी, आज के नौजवान नस्ल को भी देखेंगे इतने परेशान कि उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। दे थिंक कि फ़िक्र करके वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हर वक्त एक फ़िक्र में रहते हैं। सुबह उठते हैं इंसान तो क्या फ़िक्र होती है जी, खाना क्या है, पीना क्या है, ओढ़ना क्या है, ये सारी फ़िक्रें लेकर इंसान रात को सोता है, यही सारी फ़िक्रें लेकर सुबह फिर उठ जाता है। यानी कि बिना फ़िक्र के उसके पास 1 घंटा भी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखता हूँ कि आराम से सोए होते हैं, एकदम जैसी आँख खुलती, ओहो मेरा फ़लाँ काम रह गया, मेरा ये रह गया, मेरा वो करने वाला रह गया। नींद नहीं आती, किन की चीज़ों से? ज़मीन की फ़िक्रों की वजह से। लेकिन इस पूरे हवाला में मेरे यीशु ने 2 चीज़ों की मिसालें दी हैं। वो कौन सी हैं? एक कौवे की और एक सोसन के दरख्त की। अब यीशु क्या कहता है कि उन कौवों पर गौर करो, ना बोते हैं ना काटते हैं। ये नहीं कह रहा कि उन कौवों को देखो, बल्कि क्या कह रहा है, उन कौवों को देखो नहीं बल्कि उन पर गौर करो। यानी कि उनके गौर और फिक्र करो कि ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, ना तो उनके पास जमा करने के लिए कोई कोठी है, ना तो उनके पास ऐसा कोई रोज़गार है कि वो खुद बीज के खुद खाते भी हैं और खुद जीते भी हैं। और अगर आप इस जानवर कौवे को देखें तो अहबार 11 बाब में तमाम कौवे, जितने भी कौवों के बारे में लिखा गया, ये सारे नापाक जानवर हैं। कौवा एक नापाक जानवर है। यीशु मसीह यहाँ पर एक मामूली से जानवर की मिसाल दे रहा है। यीशु एक आम से नजर आने वाले परिंदे की मिसाल दे रहा है, जिसकी इस ज़मीन पर हो सकता है हमारी नज़र में कोई भी वैल्यू ना हो, हम उसको कुछ भी ना समझते हो कि कौवा क्या है। लेकिन यीशु क्या कहता है, वो ना तो बीतते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो उनके पास जमा करने की जगह है और ना वो इस चीज़ को जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन नापाक जानवरों को भी खाने को मुहैया करता हूँ, मैं उनकी भी फ़िक्र करता हूँ, और वो भी ही अपना रिज़्क खाकर सोते हैं। दूसरी जगह पर एक फिर दूसरी मिसाल कौन सी है? सोसन के दरख्त की। ये दरख्त कर रात में जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मैंने जब इसको देखा तो वाकई बड़ा खूबसूरत ये सोसन का दरख्त है, इंग्लिश में से कहते हैं लिली। और उसके बारे में यीशु क्या कहता है कि बस तुम उसके बारे में देखो, उसके बारे में गौर करो, किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान जो अपनी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के ऐसा लिबास नहीं पहन सकता जैसा मैं इस सोसन के दरख्त को पहनाता हूँ। यानी कि सुलेमान जिसके घर में सोने के बर्तन तक, जिसके पास सोने का तख्त, जिसके पास खाने के लिए सोने के बर्तन है, पीने के लिए गिलास तक सोने का है, जिसके पास नौकर चाकर है, सब कुछ उसके पास है। और खुदा कहता है उसको भी इतनी खूबसूरत पोशाक में नहीं पहनाता जितना खूबसूरत लिबास मैं इस दरख्त को यानी इस पौधे को पहनाता हूँ, सोसन को। लेकिन उसका इंजाम क्या होता है, उसको नहीं पता कि अगले ही टाइम वो तनूर में झोंक दी जाएगी। ना वो काटते हैं ना वो बीजते हैं। लेकिन जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। आज ऐसी फिक्रें हैं कि हम इन फिक्रों में सब कुछ भूल बैठे। ऐसी फिक्र है कि हम कहते हैं कि आज के दिन को भी हफ्ते में खुदावंद का इतना फजल है हमारी लाडली मसीही कौम के ऊपर कि सिर्फ एक दिन खुदा को देना होता है, 2 घंटे चर्च में आना होता है। लेकिन 2 घंटों में हमारे पास ये होता है कि पास्टर साहब जल्दी जल्दी से फ़लाँ काम ख़त्म करना है, मैंने जाके मीटिंग ख़त्म करी, मैंने जाना है जी। फ़लाँ काम मेरा ये पड़ा हुआ है, मैंने उसको टाइम दिया हुआ है, मैंने उसके साथ जाना है, उसने मेरी तरफ आना है, मैंने फ़लाँ की तरफ जाना है, आज मेरे घर में ये अहम है, आज मेरे घर में वो अहम है, ये काम ना रुक गया है, वो काम ना रुक जाए, मैंने उसको भी वक्त दिया है। वेयर इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द जीसस। आज हम अपनी फ़िक्रों में क्यों हैं? क्योंकि हम मसीह यीशु के इन वादों को भूल चुके हैं। बेशक हम देखने को तो अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन यीशु भी यही कहता है, ए कम एतकादो, यानी कि कम ईमान वालो।
जो कम ईमान वाले हैं उनके बारे में यीशु कहता है कि उन कौवों को देखो, जो एक मामूली सा जानवर है, जो मामूली सा है, उनसे भी कई ज़्यादा तुम्हारी औकात है, तुम्हारी वैल्यू है। इस ज़मीन पर रहते हुए हर इंसान की बहुत खुदा के करीब इज़्ज़त है, खुदा उससे प्यार करता है, और उससे भी ज़्यादा खुदा उसकी इज़्ज़त करता है जो मसीह यीशु का मानने वाला है, क्योंकि उनके पास हक़ बख्श दिया गया कि जितनों ने इसे कबूल किया उन्हें फ़र्जंद होने का हक़ बख्श दिया। और ईमानदार तो वो हैं जो यीशु के लहू से ख़रीदे गए हैं। ईमानदार तो वो हैं जिनकी खातिर मसीह यीशु ने सलीब पर जान दी और उन्हें अपना निजात दहिंदा बनकर अपना आप बना लिया। तो हम क्यों कर इन चीज़ों की फ़िक्र करें। लेकिन आगे फिर एक और चीज़ है जो हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, लेकिन 30 आयत में क्या लिखा है अरूज? क्योंकि सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इन चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। दैट इज़ द की। ये वो चाबी है जो किसी और कौम के पास नहीं है। ये वो की है, हम कह सकते हैं द गोल्डन की यू हैव बीइंग अ क्रिश्चियन। एक मसीही होते हुए आपके पास दूसरी कौमों के पास नहीं, आपके पास एक ऐसी की है जिसका नाम बाप है। और हम हमारे पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा भरोसा है जिसका नाम हमेशा तक रहेगा, जिसके हम मानने वाले उस बाप ने जिसने ज़मीन और आसमान को खलक किया, उस बाप के जिसने आसमान के चांद और सितारे बनाए, जिस बाप ने हमें जीती जान के हमारा दम फूका, और उस यीशु ने हमें यह फजल बख्शा कि दूसरी कौमों की तरह नहीं, बल्कि हम खुदा से कहें कि जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन फिर वो बात आ जाएगी कि ऐ कम इत्काद दो। हमें चर्च में बैठे हुए तो थोड़ा बहुत खुदा पर एतमाद होगा, लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही हम कहेंगे नहीं यार, ये मैं करूँगा तो मेरा रोज़गार चलेगा, मैं ये कर सकूँगा तो फिर चल कर सकूँगा। अच्छी बात है, खुदावन ने कहा है कि अपने तो खून पसीने की कमाई खाएगा, लेकिन खून पसीने की कमाई में कभी ये ना हो कि आप खुदा के किए हुए वादों को भूल जाएं और इंसान के वादों के ऊपर चलना शुरू कर दें। एक बहुत मशहूर बात है जो आप सब ने देखा भी होगा, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, आपने एक फुटप्रिंट विजन है। आपने कभी देखा है कि घरों में भी कैलेंडर लगा होगा, देखा होगा कि एक तस्वीर होती है, उसके ऊपर 4 कदमों के निशान बने होते हैं। अक्सर इंटरनेट पे भी देखो, फुटप्रिंट्स कहते हैं, यानी कि वो रेत के ऊपर चल के जा रहा है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे हैं। अक्सर आपने किसने देखा है? देखा है किसी ने? फुटप्रिंट्स उसे कहते हैं, यानी कि 2 कदम आगे 2 कदम पीछे होते हैं। अक्सर घरों में कैलेंडर लगा होता है। ये एक बड़ा विजन है। एक ईमानदार शख्स को खुदा आसमान पर ले गया, और जब वो आसमान पर खुदा उस शख्स को ले गया तो खुदा ने उससे कहा कि तू चाहता है कि मैं तेरी ज़मीन पर गुजरी ज़िंदगी के बारे में तुझे दिखा सकूं? उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं चाहता हूँ, तू मुझे दिखा। खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी की रील को प्ले किया, बैक किया, तो उसने देखा कि फ़लाँ तरीक़ को मैंने यीशु को कबूल किया है। और जब उसने यीशु को कबूल किया तो जहाँ जहाँ वो चल कर जा रहा था, जिस जिस ज़िंदगी के रास्ते में जा रहा था, जहाँ जहाँ उसके सफ़र का आगाज़ होता, वहाँ वहाँ पर उसको 4 कदम नज़र आ रहे थे। वो जहाँ कहीं जाता था ज़िंदगी में, उसके साथ साथ उसको 4 कदम नज़र आ रहे थे। उसने कहा खुदावंद ये क्या है? खुदा ने उससे कहा कि ये 2 कदम मेरे हैं और 2 कदम तेरे हैं। फिर उसने उस खुदा से कहा, खुदावंद लेकिन मैं एक तुझसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं जगह पर सिर्फ 2 कदम मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर 4 की बजाय मुझे 2 कदम क्यों नज़र आ रहे हैं? जहाँ 2 कदम है खुदा, जहाँ मैं सिर्फ 2 कदम देख रहा हूँ, वहाँ पर क्यों है? खुदावंद ने उससे कहा कि जब तू बहुत ज़्यादा मुश्किलात में था, जब तू बहुत सारी फ़िक्रों में था, जब दुनिया के प्रेशर में था, घर के हालात के लिए परेशान था, दुनिया को तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने तुझे उठा लिया था। और ये जो 2 कदम हैं ये तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं, मैंने तुझे फ़िक्रों में से निकाल लिया था। हालेलुया। ये है आपका बाप, ये है आपका खुदा
जो कहता है पतरस के ख़त में कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। ऐसा प्यार करने वाला आपका खुदा है जो आपको कभी भी ना गिरने देगा, जिसने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो हम क्यों किसी और के इख्तियार में ज़िंदगी गुजारें? हम क्यों किसी और के पीछे भागें? हम क्यों कहते हैं कि खुदा तू नहीं, मैं खुद अपने लिए फ़िक्रमंद होऊंगा? हम ये क्यों नहीं कहते खुदा मैं अपना हाथ तेरे हाथ में देता हूँ क्योंकि तूने मुझे अपनी शबीह पर बनाया, तूने मेरी कदर को इन कव्वों से ज़्यादा, इस सोसन के दरख्त से ज़्यादा अहम किया, तो मैं क्यों हर वक्त अपने लिए परेशान हूँ? मैं क्यों ये नहीं कहता कि मेरा बाप जो आसमान पर है वही मेरी फ़िक्र करेगा, जिसने मेरी फ़िक्र के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वादा रख दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यीशु तो ज़िंदगी की बातें करता है, कलाम तो ज़िंदगी देने की बात करता है, लेकिन मैं हूँ कि दुनिया की फ़िक्र में हमेशा मौत के बारे में सोचता रहता हूँ, बीमारियों के बारे में सोचता रहता हूँ, परेशानियों के बारे में सोचता रहता हूँ। ये वो है जो आपको हमेशा तारीकी में रखना चाहता, वो आपका मुखालफे मसीह है। लेकिन यीशु कहता है कि मत्ती के इंजील उसका 6 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी को ढूंढो तो दुनिया की तमाम चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अब आगे लिखा है 31 आयत में, क्या लिखा है? जो इंसान के करने का काम है। ईशा क्या लिखा है 31 आयत में? हाँ, उसकी बादशाही की तलाश करो, तलाश में रहो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। 31 आयत जो करने की चीज़ है इंसान के लिए, जिसका यीशु हुक्म दे रहा अपने शागिर्दों के, हमने इस ज़मीन पर रहते हुए करना क्या है, हमें क्या करना है? 31 आयत में, हाँ उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। एक इंसान होते हुए यीशु क्या कह रहा है? हमें उसकी बादशाही की तलाश करो। आज हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये ज़हन होता है कि यार खुदा की बादशाही मुझे मरने के बाद मिलेगी। क्या ज़हन होता है कि खुदा की बादशाही मुझे मरने की बाद मिलेगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसने बादशाही देनी है उसने अपने इकलौता बेटा ही हमारे दरमियान भेज दिया। जैसे यही सोच यहूदा इस्करियोती की थी। जब वो यीशु मसीह के साथ मिला था तो वो सोचता था कि यीशु बादशाही की बात करता है, तो यही कहता था कि यीशु इस ज़मीन पर बादशाही कायम करेगा। वो सारी रोमी हुकूमत को ख़त्म करके इस ज़मीन पर अपनी बादशाही को, सल्तनत को कायम करेगा और हम उसके साथ बादशाही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया सोच के साथ चलता था। इंसान बहुत खुदा की नज़र में अहम है। खुदा इंसान से इतना प्यार करता है और गुनहगार से तो वो इतना प्यार करता है जिसकी खातिर उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कभी इस बात को आप सोचें तो आप वाकई सोच सकेंगे कि कितनी मुझसे मोहब्बत करता है। और इब्लीस इसी चीज़ के लिए पागल हो गया था कि इस इंसान के लिए जिसने खुदा को धोखा दिया, जिसने खुदा को छोड़कर अपनी चीज़ों की इज्जत दी, जिसने खुदा को छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, और जिस इंसान ने मेरी फर्माबरदारी में रहना चाहा और खुदा की फर्माबरदारी से निकला है, उसने इस इंसान के ने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया और उनको ये वादा कर रहा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ। आज वही यीशु कहता है कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। आपका इस ज़मीन पर रहते हुए एक मकसद है, अपनी ज़िंदगी में दुनिया की फ़िक्रों में ना रहो। सिर्फ ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली कि हम सिर्फ रोटी कमाने के लिए यहाँ पर पैदा हुए। ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि हम फ़िक्रें पालने के लिए पैदा हुए। ज़िंदगी की हदें 70 या 80 साल है, इसलिए नहीं मिली कि हम सिर्फ रोटी कमाने के लिए फिरते रहें। आप बहुत ही खुदा के लिए ख़ास हैं, इसलिए खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा ने इसलिए हमें अपनी शबीह पर बनाया कि हम हमेशा बीपी का मरीज़ रहें, हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ रहें, हम शुगर का मरीज़ रहें। और ये सारी चीज़ें हमें कब मिलती हैं? जब हम अपनी फ़िक्रों को अपने ऊपर हैवी करते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि उस सोसन के दरख्त को देखो और उन कव्वों को देखो जो ना बोते हैं, ना काटते, ना जमा करते हैं, तो भी मैं उनको खिलाता भी हूँ और उनको पालता भी हूँ। और मसीह यीशु ने भी कहा, खुदा के कलाम में और भी बहुत सारे वादे हैं। उसने कहा कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। वो ये भी कहता है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, और ये भी कहता है बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आज तक आप अपनी ज़िंदगी में थक चुके हैं,
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانے کا قابل نہیں رہا، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی انا سے، اپنی اکڑ سے باہر نکلیں اور اپنا ہاتھ یسوع کو دے دیں۔ وہ آپ کو جب گلے لگائے گا تو آپ کے تمام آنسوؤں کو پونچھ ڈالے گا۔ دنیا کے لوگ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کا وہ باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے آنسو پونچھوں گا۔ آج لوگ آپ کے آنسو پونچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ روتے ہوئے کو چھوڑ کر جانے والے آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے آنسو پونچھ سکتا ہے وہ ہے جس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ انسان سے خدا نے اتنی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور آپ ہی کی وجہ سے جب خطائیں ہماری تھیں، جب غلطیاں ہماری تھیں، جب سزاؤں کے حقدار ہم تھے، لیکن ان سزاؤں کو، ان تمام خطاؤں کی خاطر میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی کمر کو قربان کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کمر پر میں ان کی خطاؤں کے لیے کوڑے کھاؤں گا۔ اس نے کہا میرا سر ان کی شرمندگی کو اٹھائے گا۔ اس نے اب سر پر کانٹوں کا تاج پہنا۔ اس نے کہا کہ ان کے ہاتھوں نے غلطیاں کی، لیکن میرے ہاتھ ان کیلوں کو جھلیں گے۔ اس نے کہا قدم ان کے غلط رستوں پر گئے، لیکن میرے پاؤں ہوں گے جن میں کیل ٹھوکے جائیں گے۔ آپ کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری یسوع نے خود پر لے کر اس صلیب پر چڑھ گیا، لیکن ہم آج بھی ان فکروں کے ساتھ جی بھی رہے ہیں اور ان فکروں کے ساتھ مر بھی جائیں گے۔ لوگوں کے کیمروں میں محفوظ ہونے سے آپ کی کوئی چیز سیو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا پیچھے رہے گا تو وہ آپ کا کردار ہوگا جو ہمیشہ آپ کی یاد کو زندہ رکھے گا۔ گھروں میں تصویریں لگ جانے سے آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ زندہ تب رہیں گے جب آپ کا کردار مسیح یسوع کے ساتھ ہوگا، اور لوگ کہیں گے ہاں یار وہ چلا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی تصویریں نشین ہو جائیں۔ دیٹ از دا لو آف جیزس۔ اور یسوع کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو دوسری قوموں کی کرنے والی تھیں، لیکن آج دوسری قومیں ہمیں نصیحتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے کہتے ہوتے ہیں ہاں پاجی تسی ٹھیک کہندے جے، پر کی کریے صبح صبح ٹائم نہ آواں گے تو آپ کام میں بیڑاں گے۔ ہمارا کام سب سے پہلے اولویت، کام پہ جانے سے پہلے بھی خدا کے سامنے جھک کے جانا چاہیے کہ خدا نے مجھے آج نئی سانسیں دے دی ہے، آج اس نے میری زندگی کو ایک اور نیا سورج دیکھنے کے لیے آنکھیں بخش دی ہیں، اور آج خدا کے نام سے یہ آفتاب سورج میری زندگی میں ایک نئی کرن دے گا۔ یہ خداوند تیرا شکر ہے۔ مت اتنی پریشانی سے ایک دم اپنے بیڈ سے چارپائی سے اٹھو، ہو کیا ہوگا جی میرا تو کام نہیں کرے گا۔ نہیں یار، ایک اور ہے جو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ کے اٹھنے سے پہلے بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کے میرے پاس آئے گا، مجھے کہے گا اے خداوند تیرا شکر تو نے مجھے آج کا دن کیا۔ وہ یہ کہے گا، اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہاں ابھی یہ میری بیٹی کچن میں جا رہی ہے پریشانی میں، جلد جب میں بھی یہ ہو سکتا ہے میرے پاس ہے کہے گی خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں جو تو نے دیا ہے، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ لیکن نہیں، ہم تب ہی یاد کرتے ہیں جب ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ جب تیری زندگی میں مشکلات تھی، جب تیری زندگی میں پریشانیاں تھیں، تو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور 2 قدم کس کے تھے؟ وہ میرے تھے، تاکہ تو پریشانیوں کو اندر نہ جا سکے۔ آپ کا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے 30 آیت میں پڑھی ہے، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ آپ خود سے سیانے نہ بننے کی کوشش کریں کہ میں اپنے لیے زیادہ بہتر کروں گا، میں اپنے بچوں کو پالوں گا، میں اپنی بیوی کے لیے اچھا کروں گا، میں اپنی اچھی صحت کے لیے یہ کروں گا، میں اچھی صحت کے لیے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فلاں کروں گا، ایسے کروں گا۔ پل کا پتہ نہیں ہے، سالوں کے وعدے، ایسی زندگی گزر جائے گی۔ خدا کا خادم بلی گراہم کہتا ہے لائف از ٹو شارٹ۔ یہ ایک بلبلے کی مانند ہے، پتہ نہیں کب ہوا آئے اور اڑ کے چلی جائے۔ انسان کے اندر جو روح ہے اس کا وزن صرف 20 گرام کا ہے، پتہ نہیں کب یہ جسم میں سے نکل جائے۔ ہوا ہی ہے نا، ہوا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس کو خدا کی نظر کر دیں، خدا سے کہیں کہ خدا تو میری فکرات کو، مشکلات کو آج تو اپنے اوپر اٹھا لے۔ تو نے میری جیسے صلیب کو اٹھایا، جیسے تو نے میری خاطر میرے لیے سر پر کانٹوں کا تاج پایا، آج میں صابر ہوتے ہوئے، اسد ہوتے ہوئے، کرن ہوتے ہوئے اپنی فکریں تجھ پر ڈالتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں۔ وہ آپ کی طرف ہنسے گا اور کہے گا کہ میں تجھے ہمیشہ کا آرام دوں گا۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ دیکھ دروازے پہ میں کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، مجھے آج دعوت دے کہ تو میرے گھر میں آ، اور میرے گھر کی تمام فکروں کو تو ہی جانتا ہے۔ میں تو تیری بنائی مخلوق ہوں، میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں؟ ہم دنیا کا تب مقابلہ کر سکیں جب ہم اس دنیا میں کچھ بنا سکتے ہیں۔ اس زمین کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا میرا اور آپ کا باپ ہے۔
ہم دعاؤں تک نہ گئے کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہم کہتے تو بڑی ہر دعا میں رٹی رٹائی دعاؤں میں ہے، لیکن اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں.